السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں INN چینل. میں ہوں شیخ احمد علی. اس نیوز بلیٹن میں آئیے نظر ڈالتے ہیں دن بھر کی بڑی خبروں پر. راہل گاندھی کو آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے صدر کے طور پر واپس لانے کی مانگ تیز ہونے کے ساتھ تلنگانہ کانگریس نے ایک متفقہ قرارداد منظور کی، جس میں راہل گاندھی سے پارٹی کی باغ ڈور سنبھالنے کی درخواست کی گئی. ایک اور متفقہ قرارداد بھی منظور کی گئی، جس میں AICC صدر سونیا گاندھی کو پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر عہدیداروں اور تلنگانہ کی AICC ارکان کو نامزد کرنے کا اختیار دیا گیا. TPCC انتخابات کے پول ریٹرننگ آفیسر راج موہن انتھن نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ راہل گاندھی سے پارٹی صدر کے طور پر واپس آنے کی درخواست کرنے والی قرارداد کو CLP لیڈر بھٹی وکرمارکا نے پیش کیا تھا، اور اس کی حمایت نلگنڈا کے MP اتم کمار ریڈی، MLA ڈی سریدھر بابو اور سابق PCC سربراہان پنلا لکشمیا اور وی ہنمنت راؤ نے کی. ایک اور قرارداد جس میں سونیا گاندھی سے دیگر عہدیداروں کی تقرری کی درخواست کی گئی تھی، اسے TPCC صدر ریونت ریڈی نے پیش کیا تھا، اور اس کی حمایت راملو نائک، شبیر علی، جے گیتا ریڈی، مدھو یاشکی، دامودر راج نرسمہا، وی ہنمنت راؤ، انجن کمار یادو اور مہیش کمار گوڑ نے کی. انہوں نے بتایا کہ قراردادیں کانگریس سینٹرل الیکشن اتھارٹی کے چیئرمین مدھوسودن مستری کو بھیجی جائیں گی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک بھر میں پہلی بار ڈیجیٹل موڈ میں ممبرشپ مہم کامیابی کے ساتھ منعقد کی گئی، اور تلنگانہ نے ملک میں دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ ممبران کا اندراج کیا. راج بگھیل اسسٹنٹ پول ریٹرننگ آفیسر بھی اس موقع پر موجود تھے. اس سے پہلے ایک فنکشن ہال میں منعقدہ PCC کے مندوبین کی میٹنگ میں کانگریس قائدین نے راہل گاندھی کو AICC صدر بنانے کے حق میں بات کی، کیونکہ BJP حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے ملک کا مستقبل داؤ پر لگا ہوا ہے. جس میں اس اجلاس میں تمام قائدین نے شرکت کی. ریونت ریڈی نے اس موقع پر کہا کہ BJP اپنے سیاسی مستقبل کے لیے ملک کو تقسیم کرنے پر تلی ہوئی ہے، اور راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترا ملک کے لوگوں کو متحد کرنے اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ہے کہ ہر ایک کو آئین کی ضمانت کے مطابق مساوی حقوق حاصل ہو. Sridhar Babu, PCC President of Telangana, and Hanumant Rao, he was also PCC President. So, 4 prominent leaders supported the resolution, and the meeting was unanimously passed the resolution, and I adopted the resolution to the AICC. And there is another resolution moved by the PCC President and Member of Parliament, Mr. C. Revanth Reddy. And that resolution at Rose Hall, Hyderabad, Sri Revanth Reddy, and that resolution was supported by Ramalu Naik, then Jeevan Reddy, Sri Shabir Ali, Srimati Geeta Reddy, Sri Madhu Yashmi, Sri Damodar Raj Narasimha, Sri Hanumant Rao, Sri Anjan Yadav, Sri Mahesh Kumar Gowda. So both resolution unanimously passed. And the election process of Telangana is over today, and I am handing over the passed resolution to the Congress. وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی KT راما راؤ نے کہا ہے کہ وسطی حیدرآباد میں وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ 3 میگا پروجیکٹس کا افتتاح کریں گے. سوشل میڈیا کے اہم پلیٹ فارم ٹویٹر پر سرگرم تارک راما راؤ نے اس خصوص میں کیے گئے ٹویٹ میں کہا کہ وزیر اعلیٰ جن 3 نئے پروجیکٹس کا افتتاح کریں گے ان میں تلنگانہ شہدا کی یادگار، امبیڈکر کا 125 فٹ اونچا مجسمہ اور تلنگانہ سیکریٹریٹ شامل ہے، جس کو ڈاکٹر امبیڈکر کے نام پر رکھا گیا. 617 کروڑ روپے کے صرفے سے تعمیر کیے جانے والے سیکریٹریٹ کی نئی عمارت کے کاموں میں اس بات کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ اس میں تمام سہولیات دستیاب ہوں. وزراء کے چیمبرز، چیف سیکریٹری کے چیمبرز کے ساتھ ساتھ حکومت کے مشیروں کے چیمبرز میں بھی تمام عصری سہولیات ہوں گی. کھانا کھانے کے لیے ڈائننگ ہالز، میٹنگز کے لیے میٹنگ ہالز، وزیٹر رومز، ہر فلور کے لیے پارکنگ کی سہولت بھی فراہم کی جائے گی. وزراء کے چیمبرز، چیف سیکریٹری کے چیمبر کے ساتھ ساتھ حکومت کے مشیروں کے چیمبرز میں بھی تمام عصری سہولیات دی جائیں گی. وزیر اعلیٰ KCR نے قبل ازیں ہدایت دی تھی کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ نئے سیکریٹریٹ کی عمارت میں تمام سہولیات دستیاب ہوں.
वजीर सेहत हरीश राव ने कहा है कि तेलंगाना को रियासत का दर्जा मिलने के बाद मछलियों की अफजाइश में इजाफा हुआ, जबकि मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में आंध्रा इलाके से मछली हासिल की जाती थी। अब सूरत हाल बदल गई है और तेलंगाना के लोग बैरूनी ममालिक को मछली सप्लाई करने के मौक़िफ़ में आ गए हैं। वजीर हरीश राव ने सिद्दीपेट जिले के कोमाती तालाब में छोटी मछलियों को छोड़ा। हुकूमत ने आबाई पेशों की हौसला अफजाई और रियासत में मछलियों की अफजाइश में इजाफे के लिए रियासत के तमाम तालाबों में छोटी मछलियों और झींगों को छोड़ने का सिलसिला शुरू किया है। इस प्रोग्राम के बाद मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने वाज़ेह किया कि रियासत भर के तालाबों में 120 करोड़ मछलियां छोड़ी जा रही हैं। वजीर बल्खी जगदीश रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की क़यादत में जारी तरक्याती और अवामी बहबूद के कामों से वजीर आज़म नरेंद्र मोदी काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का खदशा है कि बीजेपी ज़ेर इख्तियार वाली रियासतों के अवाम भी तेलंगाना की तर्ज पर तरक्की और अवामी बहबूद के कामों को अंजाम देने का मुतालबा शुरू ना करें, क्योंकि अब तक गुजरात में अवाम तरक्याती और फलाही कामों को अंजाम देने का मुतालबा करते हुए बीजेपी हुकूमत पर दबाव डाल रहे हैं। इस तरह के मुतालबात दूसरी रियासतों में शुरू होने से कबल मरकज़ की मोदी हुकूमत तेलंगाना में जारी तरक्याती और अवामी फलाह बहबूद के कामों में रुकावटें हायल करने मुख्तलिफ तरीक़ों से रियासती हुकूमत को परेशान कर रही है। मुनुगुडु असेंबली हल्के के चिंडूर में टीआरएस के जलसे से खिताब करते हुए जगदीश रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में किसानों को 24 घंटे मुफ्त बरखी दी जा रही है, लेकिन मोदी हुकूमत तेलंगाना में किसानों को दी जाने वाली मुफ्त बरखी को रोकने की कोशिश कर रही है। इसके लिए पार्लियामेंट में बरखी असलाहत तरमीमी बिल को मुतारिफ किया गया। इसी तरह रियासत के किसानों को दिए जाने वाले रैतु बीमा और रैतु बंधु स्कीम पर भी मरकज़ की नज़र है। मोदी इस बात से कायफ है कि मुफ्त बरखी और किसानों को दी जाने वाली मुख्तलिफ मराहत कहीं बीजेपी ज़ेर इख्तियार वाली रियासतों में शुरू करने का मुतालबा न किया जाए। जगदीश रेड्डी ने पार्टी कारकुनों पर जोर दिया कि वो बीजेपी कायदीन की तनकीदों का मुंह तोड़ जवाब दें और केसीआर हुकूमत के फलाही कामों पर घर घर पहुंचते हुए ज़मीनी इंतखाब में टीआरएस की कामयाबी के लिए काम करें। మునుగోడులో టీఆర్ఎస్ గెలుపు ఖాయం. అక్కడ బీజేపీ అభ్యర్థి ఇప్పటికి 3వ స్థానంలోనే ఉన్నారు. కాంగ్రెస్ 2వ స్థానాన్ని నిలుపుకోవడం కూడా చాలా గగనకుసుమంగా మారింది. వాళ్లకు నాయకత్వం లేని స్పష్టంగా కనబడుతుంది కాంగ్రెస్లో. పాపం వాళ్ళకి ఉన్నది తక్కువ నాయకులు, ఉన్న వాళ్ళను గౌరవించుకోవడం ఇంకోరి తెలియదు. జాతీయ స్థాయిలోనే నాయకత్వ కొరతతో కాంగ్రెస్ ఇబ్బంది పడుతుంది. పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడిని వెతుక్కోవాల్సి వస్తుంది. పాపం వాళ్ళు ఇప్పుడు వాళ్ళ నోటిఫికేషన్ ఇచ్చి తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితిలో ఉంది వాళ్ళ కాంగ్రెస్ పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడిని. కాంగ్రెస్ పార్టీని జోడించేటట్లేడు. పాపం రాహుల్ గాంధీ భారత్ జోడో యాత్ర పెట్టుకుని నవల పాలు అవుతున్నారు తప్ప ఇంకా అంతకుమించి ఏం లేదు. అటువంటి పార్టీకి ఈ రాష్ట్రంలో కూడా ఏమి కనుచూపు మేరలో అటువంటి అవకాశాలు కూడా లేవు. తప్పకుండా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా ఆలోచించాల్సిన అవసరం వచ్చింది. బీజేపీ విభజన రాజకీయాలని తెలంగాణ ఎప్పుడు కూడా ఒప్పుకోలేదు. తెలంగాణ ఒక చైతన్యవంతమైన సమాజంగానే గడిచిన అనేక శతాబ్దాలుగా దశాబ్దాలుగా నిలబడి ఉన్నది. तेलंगाना ख्वातीन कमीशन की चेयरपर्सन सुनीता लक्ष्मण रेड्डी ने कहा है कि ख्वातीन को नज़रअंदाज करके तरक्की हासिल करना मुमकिन नहीं है, जो समाज का निस्फ हिस्सा है। यही वजह है कि तेलंगाना हुकूमत ख्वातीन की तरक्की के साथ साथ उनके तहफ़्फ़ुज़ को भी आला तरजीह दे रही है। सुनीता लक्ष्मण रेड्डी ने सनफ़ी मसावात के ज़रिए ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने के मौजू पर मुनक़िदा कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि जब ख्वातीन बाइख्तियार होंगी तभी माशरा तरक्की की जानिब गामज़न होगा। उन्होंने कहा कि लड़कियों की तालीम माशरे में अहमियत की हामिल है। उन्होंने कहा कि माशरे में ख़वातीन तमाम शोबों में मर्दों के शाना बशाना तरक्की कर रही हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि तेलंगाना हुकूमत ने ख़वातीन की सेहत और बहबूद के लिए कई स्कीमात शुरू की हैं जिसकी नज़ीर कहीं नहीं मिलती।
सुनीता लक्ष्मण रेड्डी ने कहा कि अखामती स्कूलों और हॉस्टलों में मियारी खुराक, रिहाइश और तालीम फराहम की गई है। उन्होंने याद दिलाया कि अम्बेडकर ओवरसीज फंड के जरिए बैरूनी ममालिक में आला तालीम के लिए 20 लाख की माली इमदाद रियासती हुकूमत की जानिब से फराहम की जा रही है। कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीमात के जरिए लड़कियों की शादियों के लिए माली ताउन फराहम किया जा रहा है, जबकि आरोग्य लक्ष्मी और केसीआर किट्स के जरिए माओं और बच्चों को तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। टीआरएस के रुकन असेंबली दानम नागेंद्र ने खैरताबाद में हुकूमत की जानिब से बदकमा त्योहार के मौके पर दी जाने वाली साड़ियाँ तकसीम करने के बाद बात करते हुए कहा कि हुकूमत वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की क़यादत में रमज़ान, क्रिसमस और बदकमा त्योहार के मौके पर गरीब और कमज़ोर तबक़ात में मलबूसात की तकसीम अमल में ला रही है। उन्होंने बताया कि टीआरएस हुकूमत गरीब दोस्त है, जिसने आसरा और ज़ायब की फराहमी के अलावा राशन कार्ड पर चावल फराहम किए हैं और गरीब तलबा को मुफ्त क़याम व ताम के साथ तालीम से आरास्ता किया जा रहा है। కానీ ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు ఆలోచించి లక్షలాది మందికి తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఆడబిడ్డకి ఈ సారీ పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టి వాళ్లకు ఈ సారీలు మొత్తం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పంపిణీ జరుగుతూ ఉంది। ఈ కార్యక్రమంలో ప్రత్యేకంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలైనటువంటి కవిత గారు దేశ విదేశాల్లో కూడా మన సాంప్రదాయాన్ని, మన సంస్కృతిని దేశ విదేశాల్లో తెలవాలని, తెలంగాణ ప్రజలు ఎంత సౌమ్యులు, ఎంత మరి ఇది ప్రేమ ఆధార అభిమానానికి మారు పేరుగా ఉన్నటువంటి తెలంగాణ ప్రజల గురించి వారు కూడా దేశ విదేశాల్లో కూడా చాలా చెప్పారు। అందుకనే ఈరోజు దేశ విదేశాల్లో కూడా ఎక్కడ మనం చూసినా కూడా ఈ బతుకమ్మ పండుగ జరుగుతూ ఉంది। ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంత ఘనంగా జరుపుకున్నటువంటి అందరికీ ఆడపడుతున్న पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के दफातर और दूसरे ठिकानों पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के धावों के दरमियान बीजेपी के तेलंगाना यूनिट के सदर बंडी संजय ने चाशुम्बे को इल्जाम आयद किया कि इस तंजीम ने 2040 तक हिंदुस्तान को इस्लामी ममलिकत में तब्दील करने की साजिश रची है। अपनी प्रजा संग्राम यात्रा के 100 दिन की तकमील पर नागौल चौराहे पर मुनक़िदा जलसे को मुखातिब करते हुए बंडी संजय ने ये इल्ज़ाम भी आयद किया कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कारकुन मुल्क के दूसरे इलाकों में हिंदुओं का सर तन से जुदा करने के लिए शोहरत रखते हैं और उन्होंने बम धमाकों के जरिए तेलंगाना में भी दहशत फैलाने की साजिश रची है। बीजेपी के रियासती सदर ने मजीद इल्ज़ाम आयद किया कि तेलंगाना में इस तंजीम की तोसी के लिए टीआरएस हुकूमत जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि टीआरएस के चंद कायदीन इस तंजीम को फंड्स भी फराहम कर रहे हैं। उन्होंने चीफ मिनिस्टर केसीआर से पूछा कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के अस्करियत पसंदों पर एनआईए के धावों तक वो खामोश क्यों रहे, जबकि इस तंजीम के कारकुन जिम इंस्ट्रक्टर्स और रजाकाराना तंजीमों के भेस में काम कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि बीजेपी हिंदू धर्म के तहफ़्फ़ुज़ और हिंदू समाज को मुत्तहिद रखने के लिए हर मुमकिना इक़दाम कर रही है। बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी तेलंगाना के सरबराह आरएस प्रवीण कुमार ने वाज़ेह किया कि उनकी पार्टी मुनुगुडु के ज़मीनी इंतखाब में हिस्सा लेगी। उन्होंने कहा कि बीएसपी मुनुगुडु के साथ साथ अगले आम इंतखाबात में भी मुकाबला करेगी। प्रवीण कुमार, जिन्होंने यादाद्री भोंगी जिले के निदोल का दौरा किया, चलो मुनुगुडु यात्रा शुरू की, खबरजीम वो 100 कारों के साथ एक बहुत बड़ी रैली में रवाना हुए। खवातीन ने प्रवीण कुमार का मुख्तलिफ मकामात पर इस्तकबाल किया। आरएस प्रवीण कुमार ने कहा कि जल्द ही रियासत की आवाम को बेहतर हुक्मरानी फराहम की जाएगी। वाज़ेह है कि मुनुगुडु असेंबली हल्के का इंतखाब लाजमी हो गया, क्योंकि उस हल्के की असेंबली में नुमाइंदगी करने वाले कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने इस सीट और कांग्रेस की इब्तदाई रुकनियत से इस्तीफा देते हुए बीजेपी में शमूलियत अख्तियार की। బూటు కాళ్ళ కింద నలిగిన మునుగోడు ప్రజల జీవితాలను బాగు చేయడం కోసం, అన్ని సబ్బండ వర్గాల జీవితాలను ఒక గొప్ప భవిష్యత్తుకు మరి తీసుకుపోవడం కోసం ఈరోజు మనం ఈ రాజ్యాధికార యాత్ర చేస్తున్నాం. అయితే టీఆర్ఎస్కు ఉన్నట్టుగా ఒక జూపల్లి మెగాలో లేకపోతే బీజేపీకి ఉన్నట్టుగా అంబానీ ఆదానులో మనకు లేరు మిత్రులారా. అందుకొరకే వాళ్ళు ఈ సభలు పెట్టినప్పుడు వాళ్ళు सालार मिल्लत एजुकेशनल फाउंडेशन की जानिब से आज गरीब तलबा में हैदराबाद और सिकंदराबाद के मुख्तलिफ स्कूलों से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा में ये तालीमी किट तकसीम की गई। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट व सदर मजलिस ने इन किट्स को तकसीम किया। इस साल 14,000 तलबा में ये किट्स तकसीम की गई हैं। ये तलबा का ताल्लुक़ 89 उर्दू मीडियम स्कूलों से है जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वाक़ हैं।
इस मौके पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने बात भी की। और मैं ये बात भी कहना जरूरी समझता हूं कि आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना रियासत में जो 4% का रिजर्वेशन है, वो 4% का रिजर्वेशन जिससे मुसलमानों में जो बैकवर्ड कास्ट हैं, मुसलमानों में 90% लोग बैकवर्ड कास्ट के हैं तेलंगाना और आंध्रा में, उनको जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है, जिससे बहुत फायदा मुसलमानों के उन बैकवर्ड कास्ट को हुआ है। हम ये उम्मीद करते हैं और हम इस बात का मुतालबा करते हैं कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी, जो सुप्रीम कोर्ट में ये केस आया है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने, वो बेहतरीन से बेहतरीन लीगल टीम को तैयार करेंगे और इसका दिफा करेंगे। और इनकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हम सुप्रीम कोर्ट के सामने मुसलमानों में जो बैकवर्ड कास्ट हैं, उनके पसमानदगी का डेटा सुप्रीम कोर्ट के सामने रखें। और तेलंगाना में सुधीर कमेटी की रिपोर्ट है, तेलंगाना की सुधीर कमेटी की रिपोर्ट पूरे आदाद व शुमार और डेटा एम्पिरिकल एविडेंस जिसको कहते हैं, जिससे बात साफ तौर पर जाहिर होती है कि तेलंगाना के मुसलमानों को रिजर्वेशन तहफुजात इसलिए मिलने चाहिए क्योंकि वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, वो तालीमी और समाजी तौर पर पसमानदा है। इस बुनियाद पर, इस डेटे की बुनियाद पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और इस सिलसिले में मैंने चीफ सेक्रेटरी से बातचीत की, उनसे मुलाकात की और उनसे बार बार हुकूमत को तवज्जो भी दिला रहा हूं। तो चीफ सेक्रेटरी ने मुझसे कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में द्विवेदी साहब, धवन साहब और सीनियर वकलाओं का तेलंगाना की हुकूमत ने उनको बहैसियत अपना वकील मुकर्रर किया है। तो मैंने हुकूमत से ये भी कहा है कि जो प्रोफेसर गोपाल साहब हैं, जिन्होंने बेहतरीन बहस की ये 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के रिजर्वेशन के खिलाफ, उनको भी रखा जाए। तो हुकूमत ने मुझसे वादा किया है कि उनको भी रखेंगे। साथ ही साथ मैंने तजवीज भी दी कि एमआर शमशाद साहब को और निजाम पाशा साहब को इस लीगल टीम का हिस्सा बनाया जाए, क्योंकि अगर हम अपनी ताकतवर लीगल टीम नहीं बनाएंगे तो खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि हम ये 4% तहफुजात से खुदा ना खास्ता हम उसको खो दें। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि तेलंगाना की हुकूमत, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर और आंध्रा के